One of the way prescribed to kill the ego is to do menial work and do karma yoga. नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। ये वीडियो है श्री एम का। वीडियो का टाइटल है डीलिंग विद द ईगो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने के बाद हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, और वीडियो के साथ साथ भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। शुरू करें, चलिए। One of the way prescribed to kill the ego is to do menial work and do karma yoga. यहाँ पे शुरुआत में ही स्वामी जी हैं, वो कह रहे हैं कि ईगो को किल करने के लिए, ईगो को ख़त्म करने के लिए आपको योग करने की आवश्यकता है। योग के कई स्वरूप हो सकते हैं, कर्म योग उसमें से एक है। आगे बढ़ते हैं। Do you suggest some other ways to kill the ego? अच्छा, ये Nice प्रश्न है, question. ये किसी का Look, प्रश्न है। when the ego tries to kill the ego, it becomes a double ego. One ego is trying to, there are no 1, 2 ego, there is only one ego. One ईगो को हिंदी में हम अहम कहते हैं, यानी अहंकार। अगर किसी का अहंकार आपके सामने आता है, उसका जवाब जो है, उसका प्रत्युत्तर आप उसको अहंकार में ही देंगे, तो उस चीज़ की सुलह नहीं हो सकती कभी भी, है ना। ईगो को ईगो से नहीं काट सकते, तो वो डबल ईगो हो जाएगा। वहाँ पे फिर झगड़ा होना अनिवार्य हो जाता है, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। ego is saying, I don't like this ego. Who is saying? The ego. And therefore, since I don't like it, they have to find ways and means to sort it out. So how do I sort it out? People have suggested to do karma yoga. People have suggested to do what our friend calls here menial work. Yes, if you are ready to do a kind of work which normally you will not do, like cleaning the toilets and so on, which Gandhiji tried to do, not the government organized cleaning, from the heart. So, when one begins to do that, then you're doing something which normally you wouldn't do. There are people, even there are among workers, who say we'll do any work but we won't clean the toilet. So there's something terrible there going on, which is why our toilets are never clean, because we think we have to run from there quickly, finish and go. You can't even keep your own toilets clean. How will you keep your minds clean? So that's one way, of course, of dealing with the ego. I don't like the word to kill the ego. I like the word to deal with the ego. Deal with the ego, not kill the ego. Actually, you can't kill the ego. You can only deal with the ego. But however, if I say, as I think, the best way to deal with the ego is to gradually and repeatedly make it understand that you are the problem actually. There is no other problem. एक नंबर। ये अहंकार की जड़ आप हैं, प्रॉब्लम आप हैं, ईगो नहीं है। क्योंकि ईगो जो है वो शैतान है जो आपकी असुरक्षा, आपके भय, आपकी घृणा के द्वारा ही पोषित होता है, आपके अंदर ही पोषित होता है। तो अगर आपके अंदर असुरक्षा की भाव नहीं रहेंगे, आप किसी चीज़ से भयभीत नहीं होंगे, आप किसी से घृणा नहीं करेंगे, तो ये ईगो पैदा ही नहीं होगा। तो ईगो का सबसे बड़ा कारण हम खुद ही हैं, और जब तक हम हैं वो मर नहीं सकता, लेकिन हाँ, हम उसके ऊपर उठ सकते हैं। आगे देखते हैं। If I can deal with you, then I can deal with anything. So now how do I do that? By developing, not trying to kill, but by first trying to develop a good relationship with the ego. Who's trying to create? One part of the ego. It's not as if there are two entities there. One part of the ego is saying, well, I don't like this fellow, the other part of the ego, which is creating all these problems for me. I need to get out of it. Ego is only saying that. One part of the ego. It is dividing itself into the ego which likes to be not distracted and the ego which is
I think is stooping down, low down. So, okay, that's the only way we can look at it, human beings. While we look at it, unless and until we look at it completely, under all circumstances, you will not be able to study the character of this part of the ego you're dealing with. And if you cannot study it, how will you deal with it? Okay, suppose I want to deal with one of the persons here, sitting here, and try to bring about a change. First, I should know what that person is about. If I don't know fully, how can I change that person? I need. यदि आप सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल समाज की भी बात करें हम, या फिर आप कहीं पे भी किसी किस्म का परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप उस कर्म क्षेत्र की, वहाँ की परिस्थिति की, सर्कमस्टांसेस का जायज़ा लें, मुआयना करें और उसको समझें। यदि आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो स्थान है, चाहे वो कोई कार्य है, तो अगर आप उसको बिना समझे करेंगे तो संभावना रहेगी कि वो कभी पूरा नहीं होगा, है ना। तो ईगो के साथ भी वही है। उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उससे ऊपर उठने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उन परेशानियों को सबसे पहले अपने अंदर एक्नॉलेज करें और उसके बाद उस पर कार्य करना शुरू करें। Need to understand that person fully. This also happens between the teacher and the student. The teacher would like to understand the student completely before he starts instructing, but the student doesn't want to let some parts be available to the teacher to study. So he keeps it shut under lock and key. How do I study it then? ये बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं शायद, क्योंकि आज के मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, उसमें मुझे लगता नहीं कि टीचर की भी कोई इंटरेस्ट है स्टूडेंट को समझने में। क्योंकि अगर आप कॉलेजेस की, स्कूल्स की बात करेंगे तो एक एक बैच में 60-60, 70-70 बच्चे पढ़ते हैं और 1 घंटे का क्लास होता है। बेयरली एक स्टूडेंट को 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो मुझे लगता नहीं कि एक स्टूडेंट के पास टीचर को समझने का या टीचर के पास स्टूडेंट को समझने का भी इतना टाइम होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज्ड है। बच्चे ट्यूशन टीचर को ज़्यादा समझते होंगे, बशर्ते कि वो अपने स्कूल के टीचर को समझते होंगे। हो सकता है मैं गलत हूँ कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरीके से मैं इस मामले में गलत नहीं हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। And if I don't study, how do I deal with it? So, these are some of the ways which you can deal with the ego. As far as he says, do karma yoga, the real meaning of the word karma yoga is to work not for oneself but for others, and not work expecting results at every minute, but to apply your mind long term to the work. ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा योगी तो कौन है। बहुत बढ़िया। This is the way to go about doing karma yoga. You can every day do carpentry, that is not karma yoga. Karma yoga is when you are, for instance, looking after somebody who is not well. This is ideal karma yoga. You get nothing out of it, but you want to do it. This is pure karma yoga in its pure form. Well, it gets a little bit grosser as you say, okay, at least I am working and not being lazy. That's also karma. Because some people think that they are in samadhi when actually they are lazy. I know people, I don't do kriya anymore. Why? Sir, I now my mind. And then Touch the divine. They don't say that, of course. So, one has to watch. Vigilance is the answer. If you are vigilant, you can deal. बस इतना था, 5.5 मिनट का वीडियो था, बट बहुत ही ज्ञानप्रद और बहुत ही खूबसूरत तरीके से
श्री एम ने अपनी बातों को रखा। वो तो खैर योगी हैं, ज्ञानी हैं। ईगो बेसिकली कुछ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना चाहता हूँ। वो ईगो के बारे में बात कर रहे थे और वो किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव करता है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कर्म योग के द्वारा। और कर्म योग क्या है कि फल की इच्छा ना करना और अपना कर्म करना ही कर्म योग है। तो ये श्री एम ने कहा। और ईगो जो है, अहंकार जो है, वो ज़रूरी भी होता है हमारे जीवन में, क्योंकि वो अहंकार आपको आपके होने का एहसास दिलाता है। आपका शरीर जो है वो अहंकार तत्व से ही बना हुआ है। लेकिन जब ये अहम बहुत ज़्यादा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो वो जो है वो सही नहीं होता, वो विनाश का कारण होता है, हमारे समाज के लिए भी और हमारे लिए भी। तो और इसके पीछे रीज़न सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमें लगता है हम गलत हो ही नहीं सकते, है ना। हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम कभी गलत हो भी सकते हैं या हम गलत हैं। ये बहुत मुश्किल होता है। ईगो की जो जड़ें हैं उसको अपने जीवन में फैलने से हम रोकें, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को दबाएं, हम अपने आप को समझाएं, अपनी गलतियों को और अपने कामों को तटस्थ होकर एज अ थर्ड पर्सन देख सकें, इवैल्यूएट कर सकें और उसको सुधार सकें। तो ये गुण जो है बहुत कम लोगों में होता है, इसलिए ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। कई बार हम लोग हर बात को बहुत पर्सनली ले लेते हैं, उसका हमसे कोई संबंध भी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो हमारी फितरत बन चुकी है, हम उसको पर्सनली ले लेते हैं और उसकी वजह से हम बेवजह बिना कारण के विवादों में पड़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने आपके सामने गाड़ी लगा दी, तो आप उसको परेशान करने के लिए उसके सामने गाड़ी लगाएंगे जानबूझ के, या पार्किंग में अक्सर अगर आपने नहीं किया होगा या किसी ने आपके साथ नहीं किया तो आपने अपने आसपास ज़रूर ऐसा होते हुए देखा होगा। तो ये सब ईगो के कारण ही होता है। दोस्तों, ईगो एक बीमार मानसिकता है जो हम सब के अंदर है। अगर आपके अंदर नहीं है तो भी आपने अपने आसपास के लोगों में ज़रूर देखा होगा। तो ये वीडियो है श्री एम का, जो कि सत्संग फाउंडेशन के चैनल पे है। जैसे हमने पहले कहा कि जो असुरक्षा, भय, घृणा, लोभ, इन भावों से पोषित होकर जो है हमारा अहंकार हमसे डील करता है और हमारे ज़रिए दूसरों से डील करता है। तो मुझे ये बखूबी पता है कि डर की वजह से या दूसरे एलिमेंट्स की वजह से हम जो भी ख़ास कदम उठाते हैं, कई बार उससे बात बिगड़ भी जाती है। और जब बात बिगड़ जाती है तो फिर हम उसका ठीकरा जो है अपने किस्मत पर, अपने भाग्य पर फोड़ देते हैं। तो वहाँ पे भी बात फिर गलत हो जाती है, क्योंकि हम भी गलत नहीं थे, यहाँ पे किस्मत गलत है, वहाँ पे कोई और गलत था, है ना। तो ये चीज़ जो है, इसमें आत्ममंथन की ज़रूरत है। मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो में और बहुत ज्ञानवर्धक भी था। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी मज़ा आया होगा। तो आप अपने विचार जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जाके उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में मुझे भी लाइक करें, मेरे वीडियो को भी लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा कोई और वीडियो के साथ आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।